Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 5. We are going to start Unit 1. Its title is 4 Things. My dear fellow teachers, I have divided this unit into these lectures. You may follow it or you may modify it for your convenience. And what the lecture typically concerned with SLOs, I'm going to tell you. In lecture 1, under the title of grammar, we'll cover common and proper noun topic, and we'll cover page number 9 and 10 of the book. And the SLO will be to classify nouns as common and proper nouns, names of people, pets, places, mountains, lakes, rivers, etc. In lecture 2, under the title of grammar, we'll learn about punctuation marks. We'll cover page number 11, and we'll cover SLO to recall the rules of punctuations learned earlier. Lecture 3, under the title of homophones and homonyms, will cover page number 11 and 12, and the SLO will be to locate, identify, differentiate between, and use some simple pairs of words including homophones and homonyms. Lecture 4 has been divided into 2 parts. In first part, we'll read the poem, cover page number 6 and 7, and we'll cover the SLO to recite the poems with actions, use critical thinking to respond to text post-reading, use post-reading strategies to respond to the text by applying word knowledge and own opinion to the text read. In part 2, again, we'll practice writing a poem. We'll cover page number 7 and 8 of the book, and we'll cover the SLOs to write the central idea of given poem in simple language, list rhyming words and write poem based on the same central idea, write multi-syllable words with correct spellings. Lecture 5, under the title of pronunciation skill, we'll learn about long and short vowel sound, page number 8 and 9 of the book, and we'll cover the SLO to identify and pronounce long and short vowel sounds in different words. Lecture 6, under the title of listening and speaking, we'll learn to offer and accept apology, page number 13 of the book, and the SLO is to use appropriate expressions in conversation to offer and accept apology. Lecture 7, under the title of writing, we learn about informal and formal letter, page number 13 and 14 of the book, and the SLO will be to write an informal letter and formal letter of application. So our focus for this lecture will remain till here, an informal letter. Okay, so that's it about the lecture division. Now let's understand what this lesson is all about. So first is theme. Theme of this lesson is, my dear students, its theme is life skills, and its sub-theme is good behavior. Life skills क्या होते हैं? Basically, जिंदगी गुजारने के आदाब. देखिए बेटा, हम जो भी काम करते हैं या जो भी हमें असाइनमेंट मिलती है, उसको करने के कुछ तौर तरीके होते हैं. जैसे आप स्कूल आते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, टाइम पर आते हैं, स्कूल के रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं. सो ये सारे आपके स्कूल के आदाब हैं. इसी तरह ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, इसको गुजारने के कुछ आदाब हैं. ओके, और इस पोएम में जो बेसिकली फोकस किया गया है उन आदाब में से, वो है गुड बिहेवियर, मीन्स अच्छे अखलाक. ये एक बहुत बेसिक आदाब में से एक है. ज़िंदगी गुजारने के बहुत से आदाब हैं, और उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अच्छे अखलाक है, और ये लेसन हमें इस पोएम से मिलता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम. क्या कहती है ये पोएम? फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट सेज 4 things a man must learn to do if he would keep his record true. यानी 4 चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए आपने सीखनी है, अगर आप चाहते हैं आपका रिकॉर्ड ठीक रहे. एंड रिकॉर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर? नामाए अमाल, अमाल नामा. क्योंकि हमारा यकीन है कि जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम करते हैं, उसको लिखा जाता है. यहाँ पोइट ने उसको रिकॉर्ड का नाम दिया, जो कि अमाल नामा है. राइट, हर फर्द का, हर शख्स का अमाल नामा लिखा जाता है. तो अगर हम अपना अमाल नामा अच्छा रखना चाहते हैं, तो शायर का ख्याल है कि 4 चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए. और वो क्या है? टू थिंक विदाउट कन्फ्यूजन क्लियरली, टू लव हिज फेलो मैन सिंसियरली. पहले तो आपको अच्छे तरीके से सोचना आना चाहिए. क्लियरली, व्हाट डज इट मीन?
वाज़ेह तौर पर आपको पता होना चाहिए सच बोलना अच्छी बात है, देयर इज़ नो डाउट इन इट, और झूठ बोलना बुरी बात है, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट। फिर वो कह रहे हैं टू लव हिज फेलो मैन सिंसियरली। फेलो मैन मीन्स ऑल दी ह्यूमन बींग्स, तमाम इंसान। ये नहीं कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे घर के लोग, बस उनसे मैं अच्छा हूँ। यू शुड बी गुड विद एवरीवन, यू शुड लव देम एंड सिंसियरली मुखलिस, प्योरली यू शुड हैव, आपको उनका ख्याल रखना है। बेटा हम यहाँ पर तमाम इंसान एक कुनबा हैं, ठीक है, जो हमारे बेसिक राइट्स होते हैं ना, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो हर इंसान की हैं, और हम किसी को जज नहीं करेंगे कि मैं इसके साथ अच्छा बन जाऊं और इसके साथ नहीं। वाई, वी शुड बी गुड विद एवरीवन, और ये हमने करना है बहुत ही मुखलिसाना तौर पर। किस सोच के साथ? मुखलिसाना का क्या मतलब है कि हमारा इखलास अल्लाह के लिए है, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, अगर हम किसी की हेल्प करें तो उसका अजर हमें अल्लाह की ज़ात में देना है, ठीक है। To act for honest motives purely, to trust in God and heaven securely. जो भी अच्छा काम कर रहा है उसकी आप मदद करेंगे, और अल्लाह और यौम आखिरत, जन्नत, दोज़ख पर हमारा यकीन सिक्योरली है। एंड सिक्योरली मीन्स पुख्ता, हमारा पुख्ता ईमान है कि इंशाल्लाह हम अच्छे काम करेंगे और अल्लाह ताला हमें इनाम के तौर पर जन्नत देंगे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर इस पोएम में हमें सिखाई गई हैं, जो कि आज हमने डिस्कस की। अब आपने इन पर गौर करना है, कल हम इंशाल्लाह इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आप कीप थिंकिंग अबाउट इट, और बेटा जो भी अच्छी चीज़ हम सीखते हैं उसको सीखने का मकसद क्या है, उसको अपने अमल में लाएं। दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे एंड दिस इज़ द मैसेज वी गेट फ्रॉम कुरान। ओ यू हु बिलीव, बी केयरफुल ऑफ योर ड्यूटी टू अल्लाह एंड बी द ट्रू वंस। सूरह अत-तौबा वर्स 119। ओ हु यू बिलीव, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं, तो हमें क्या करना है, हमने केयरफुल रहना है अपनी ड्यूटी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो जब हम अपनी ड्यूटी अल्लाह ताला के लिए कर रहे होते हैं ना, तो बेटा हमारा हर अमल अजर वाला अमल बन जाता है, ठीक है। तो हमने हर वक्त ये सोचना है कि हम अपनी ड्यूटी अल्लाह के लिए करें, और जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो ट्रू वंस हैं, उनके हम साथ हैं, उनके साथ हम यूनिटी से चलेंगे। यही एक अच्छे इंसानी माशरे की बुनियाद है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।